Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. Today date is 8 February 2021 and I am teaching you chapter number 9. Name of the chapter is Living Safely. Name of the chapter is Living Safely. So let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video I explained you what are the precautions that we take when we are, what safety, you can say precautions also, or you can say safety rules also, what safety rules we should follow that we can avoid the accidents. So this thing I have explained you in the earlier video. After that, what safety rules we have to follow on the road to save ourselves. Next, what safety rules we will follow in the school, because see student, school is also known as their second home, because after home the maximum time which you spend is in your school. Okay, so what safety rules we will follow in the school, that also I have explained you in the previous video. After that student, in the playground, what safety rules we will follow in the playground, that also we have, this thing I have already explained you in the previous video. So student, in today's video, first of all we discuss what is first aid. So the immediate help that is given to the victim, or you can say the patient, before the doctor arrives is known as first aid. So you can note down the definition of first aid from the board also, or even you can underline in your book also. So open page number 64. The immediate help given, the immediate help given to the immediate help given to the victim, before the doctor, before the doctor arrives.
is known as first aid. ठीक है. So student, the immediate help given to the victim. Victim means the person, or you can also say patient. So the immediate help given to the victim before the doctor arrives is known as first aid. Okay, this is known as first aid. Now see student, the most important thing while giving first aid is to remain calm. Remain calm means हमें पेशेंस रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए. ठीक है. बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं, जैसे बाई चांस चोट किसी को लगती है तो लोग एकदम से टेंशन में आ जाते हैं. अरे इतनी चोट लग गई कैसे, मतलब देखो, एक तो किसी को चोट लगी है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है. अगर हम शांत रहेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे, देन ओनली वी कैन हेल्प द पेशेंट. Is it clear? A first aid box contain a pair of. Now we will discuss what are the things which are in the first aid box. Now we will discuss what are the things which are present in the first aid box. So pair of scissors, cotton roll, band-aid strip, antiseptic lotion, thermometer, a burn ointment, and some pain killers. Okay, now one by one we will discuss. See, these are the things which should be present in the first aid box. See, pair of scissor. Why we need a pair of scissor? To cut the cotton roll. ठीक है. By chance if someone is injured, तो हम उसे कॉटन रोल लगा रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं, तो उसको कट करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? सीजर की जरूरत होती है. ठीक है. सो पेयर ऑफ सीजर, कॉटन रोल. सो इफ समवन इज इंजर्ड, तो आप दवाई लगाने के बाद उसको कॉटन रोल इसलिए करते हैं जिससे उसमें जर्म्स या हाउस फ्लाइज ये सब उसमें ना बैठें. ठीक है. क्योंकि जब हमें चोट लग जाती है, हमारी स्किन रिमूव हो जाती है. ठीक है. तो स्किन क्या करती है? हमारे बॉडी की पूरी कवरिंग करती है. स्किन कवर्स एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑल्सो स्किन. तो स्किन क्या हमारी बॉडी को पूरा कवर करके रखी है. ठीक है. सो अब बाई चांस अगर चोट लग जाती है, स्किन इज रिमूव्ड, सो हमारे बॉडी के जो अंदर के सिस्टम्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं.
सो उस पर जम्स ना ग्रो करें, जम्स ना लगें, इसलिए हम लोग उसको कॉटन का जो रोल होता है उससे बांध देते हैं। ठीक है, बैंडेड है, स्ट्रिप्स है, एंटीसेप्टिक लोशन चाहिए होता है। ठीक है, बिकॉज वी फर्स्टली हम उसे क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, या तो वाटर से भी कर सकते हो या एंटीसेप्टिक लोशन लगाना होता है, जिससे कि हमारे उस जो जहाँ पे हमें चोट लगी है तो वहाँ जर्म्स भी किल हो सकें। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक लोशन लगाते हैं उसके लिए। थर्मामीटर इज यूज फॉर टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आप थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर से पता लगा सकते हो, ठीक है, कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर और नॉट, इसलिए थर्मामीटर भी होना चाहिए। बर्न ऑर्नामेंट है, फॉर एग्जाम्पल देखो कभी कभी होता है ना, आपकी मम्मी लोग किचन में वर्क करती हैं, मम्मी लोग क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी ने कुछ कुक किया, कभी होता है ना बच्चे अचानक से गए और बाई चांस उन्होंने कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को टच कर लिया जो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, तो उससे स्किन बर्न हो जाती है, होता है ऐसा। ठीक है, हमें पता नहीं है, मम्मी ने रखा है, ऐसा कोई हॉट ऑब्जेक्ट हमने टच कर दिया तो उससे हमारी स्किन बर्न हो जाती है। ठीक है, तो बर्न ऑर्नामेंट तो होना ही चाहिए घर में। ठीक है, बर्न ऑर्नामेंट होना ही चाहिए, तो ये भी फर्स्ट एड में होना चाहिए। एंड सम पेन किलर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर चोट लग गई, कहीं स्वेलिंग हो गई, कुछ हो गई, तो हमें बहुत पेन होती है, तो पेन किलर्स भी फर्स्ट एड बॉक्स में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ए पेयर ऑफ सीजर, सबके रोल भी मैंने बता दिए, कॉटन रोल है, बैंडेज है, हल्का सा अगर कटवट लगता है स्किन पे तो आप बैंडेज लगा सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट है एंटीसेप्टिक लोशंस है, जहाँ पे चोट लगी है इससे इंजर्ड एरिया को वॉश करने के लिए हम इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंटीसेप्टिक लोशन। थर्मामीटर से हमें ये पता चल जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर वी मेजर वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर और नॉट। सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हाउ वी नो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर। नेक्स्ट है, ए बर्न ऑर्नामेंट इज वेरी नेसेसरी थिंग इन द हाउस. By chance if we touch a hot object then our skin burn, so in a first aid box it is a very necessary thing that you kept a burn ornament also in the first aid box. And last one is some pain killers. ठीक है, कभी कभी गेम खेलने में भी ग्राउंड में बहुत चोट लग जाती है, ठीक है, तो पेन होने लगती है, या कभी कभी होता है ना, अभी आगे जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं, जब हम लोग ये डिस्कस करेंगे स्प्रेन। स्प्रेन मतलब होता है जैसे हम खेल रहे हैं, गलती से हमारा पैर क्या ट्विस्ट कर जाता है, ये अक्सर कहाँ होता है, जॉइंट्स पे होता है, जहाँ पे हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ दो बोन्स मीट करते हैं। ठीक है, तो पैर गलती से ट्विस्ट हो जाता है, या हाथ की, अब जैसे ये है, ठीक है, हैंड हमारा मूव करता है, कहीं बाई चांस ट्विस्ट हो गया या कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं मोच आ जाना, होता है ना, फिर हम चल भी नहीं पाते हैं, जैसे लगता है एकदम से, तो इस केसेस में बहुत पेन होती है, तो पेन किलर्स भी दिए जाते हैं, तो इसलिए पेन किलर्स भी होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बुक वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले बर्न है, ठीक है, ठीक है, अब देखो, सो इफ दिस हैपन इन द हाउस, अगर कोई बर्न हो जाता है तो व्हाट वी कैन, हाउ कैन वी डील विद दिस बर्न्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट एड बॉक्स बेटा घर में भी होना चाहिए, एंड कैरी इट वाइल ट्रेवलिंग, अगर आप कहीं जाते हो तो भी फर्स्ट एड की कुछ चीज़ें ले जानी चाहिए। ठीक है, बहुत लोग कैरी करके नहीं, हो सकता है आपके मम्मी पापा भी, जैसे आप लोग, हम लोग कहीं दूर जाते हैं, ठीक है, फार डिस्टेंस में बाई रेलवेज जा रहे हैं, तो देखो हो सकता है आप बीमार हो जाओ, आपको फीवर हो जाए, समटाइम्स स्टमक पेन होने लगती है या कुछ, तो हम लोग फर्स्ट एड की कुछ मेडिसिन ये सब अपने साथ जरूर रखते हैं, ऐसा आपके मम्मी पापा भी करते होंगे। ठीक है, अब आप कभी बाहर जाओ तो देखना, ऑब्जर्व करना कि आपके मम्मी लोग कुछ मेडिसिन संग लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तब आप इस चीज़ को ज़्यादा बेटर रियलाइज करोगे।
ठीक है, अब देखो हेयर आर सम वेज टू डील विद बर्न। बाई चांस अगर घर में कुछ ऐसा हो गया कि बर्न हो गया, तो व्हाट थिंग्स व्हाट वी कैन डू इन द हाउस। ठीक है, अब देखो बर्न के रीजन क्या हो सकते हैं। बर्न का रीजन हो सकता है कि बाई चांस गलती से कहीं बॉइल वाटर ना आपके ऊपर गिर गया हो। ठीक है, होता है ऐसा कि हम बॉइल वाटर को गैस के उससे हटा रहे हैं, बाई चांस स्लिप हो गया और बॉइल वाटर हमारे ऊपर गिर गया। फायर टचेस ह्यूमन स्किन। ठीक है, और व्हेन स्किन कम इन कॉन्टेक्ट विद ए हॉट ऑब्जेक्ट, सो दीज आर द रीजन। ठीक है, बर्न के क्या रीजन हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि हॉट वाटर आपके ऊपर गिर गया हो। ठीक है, और बाई चांस योर स्किन टचेस विद द फायर, दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर द बर्न। एंड अनदर रीजन इज दैट बाई चांस यू टच सम हॉट ऑब्जेक्ट, गलती से आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया। ठीक है, सो दीज आर द रीजन फॉर द बर्न्स। ठीक है, अगर सिंपली ऐसा होता है तो फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू, वी शुड ट्रीट बर्न्स बाई पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन द बर्न्ड एरिया और बाई अप्लाइंग आइस ऑन द एरिया। बेटा अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है, ठीक है, अगर आपकी स्किन बर्न हो गई है तो फिर उसके बाद ना बहुत जलन होती है। ठीक है, अगर स्किन बर्न करती है तो उसका सबसे बेस्ट मेथड है, देखो आज की डेट में हर घर में रेफ्रिजरेटर्स है। ठीक है, सो या अगर आइस नहीं है तो इफ देयर आर कोल्ड चिल्ड बॉटल्स ऑफ वाटर, आप उस कोल्ड वाटर को बर्न एरिया पे अप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि जब स्किन हमारी जल जाती है ना किसी हॉट ऑब्जेक्ट के टच में आने से, तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत पेन होती है। सो एट दिस टाइम इफ यू अप्लाई द कोल्ड वाटर तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। ओके, अगर कोल्ड वाटर है तो आप कोल्ड वाटर अप्लाई कर सकते हो। इफ देयर इज अ आइस इन द रेफ्रिजरेटर देन यू डायरेक्टली अप्लाई द आइस। ठीक है, क्योंकि अब एक्सीडेंट कब क्या हो जाएगा हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो हमें पता नहीं होता है। अगर बाई चांस फ्रिज में आइस नहीं है तो आप कोल्ड वाटर उस एरिया पे अप्लाई कर सकते हो, और अदरवाइज इफ आइस इज इन द फ्रिज देन टेक दैट आइस एंड देन अप्लाई ऑन दैट एरिया। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड क्या है, व्हेन द बर्निंग sensation subsides then apply an ornament or baking soda with the water which will not let the burn break into blisters। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बोला ना सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, जब स्किन किसी भी तरह से या तो बॉइलिंग वाटर गिर गया हो, या तो इफ द स्किन कम इन टच विद ए फायर, और बाय चांस इफ वी टच द हॉट ऑब्जेक्ट, तो सेंसेशन बहुत जलन होती है स्किन में। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में सेंसेशन बोला है, हिंदी में क्या कहेंगे, बहुत जलन होने लगती है स्किन में। ठीक है, तो उस पर बर्न ऑर्नामेंट जो अभी मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया था, फर्स्ट एड बॉक्स में भी रखना चाहिए, क्योंकि डेली किचन में आप लोग की मम्मी लोग खाना बनाती हैं, तो बाई चांस ऐसा हो सकता है, या आपके संग भी हो सकता है, कभी गलती से आप हॉट ऑब्जेक्ट टच कर दिए। सो आप उस पर बर्निंग ऑर्नामेंट अप्लाई करिए। ठीक है, और एक मेथड और दिया है, आप बेकिंग सोडा होता है, इसे भी आप अप्लाई कर सकते हो विद वाटर, एंड विच वाटर विच विल नॉट लेट द बर्न ब्रेक इनटू ब्लिस्टर्स। ठीक है, तो देखते हो ना बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाती है ना, तो फफोले टाइप के पड़ जाते हैं हाथ में। ठीक है, और जैसे लगता है उसमें पूरा पानी भर गया है। ठीक है, तो आप इसको अगर अप्लाई कर देते हो तो आपकी स्किन के संग ऐसा नहीं होगा, स्किन सेफ रहेगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो गई है तब तो आप डायरेक्टली यू विल गो टू द डॉक्टर। ठीक है, अगर इंजरी बहुत ज़्यादा है तो इतनी नॉर्मल फर्स्ट एड देने के बाद आप पेशेंट को कहाँ लेके जाओगे ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर के पास लेके जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कट्स एंड वाउंड्स। ठीक है, कट्स एंड वाउंड्स। ठीक है, अब देखो व्हाट वी कैन डू इफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन्स, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉश द एरिया विच इज कट विद वाटर। अब वाटर से भी वॉश कर सकते हो, अगर स्किन में कट लगा, कभी क्या होता है सीजर,
सीजर नहीं, ज़्यादा तो ये होता है नाइफ से, ठीक है, जो चाकू होता है जिससे मम्मी लोग वेजिटेबल्स खाती हैं, ठीक है। कभी क्या होता है बच्चों को शार्पनर नहीं मिलता है, सो दे टेक द नाइफ्स ऑफ द किचन एंड दे स्टार्ट शार्पिंग देयर पेंसिल विद डैट, इसमें भी हो जाता है, ठीक है। तो बाई चांस अगर ऐसा होता है तो वॉश दैट एरिया विद द क्लीन वाटर और अदरवाइज यू कैन अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन ऑन दैट। डिटॉल देखो सारे घर में आपको मिल जाएगा, सो आप एंटीसेप्टिक लोशन डिटॉल भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द एरिया शुड बी विप्ड विद कॉटन डिप्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन। देखो ये ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है। एंटीसेप्टिक लोशन क्या, कॉटन क्या होती है, रुई को बोलते हैं बेटा, ठीक है। रुई जो होती है ना उसमें डिप कर लिए, एंटीसेप्टिक लोशन लगा लिया, और फॉर एग्जांपल बाय चांस यहाँ पे चोट लगी है तो कॉटन को उसमें डिप कर लिया एंटीसेप्टिक लोशन में और उसको इस पर क्या कर दिया, अप्लाई किया, ठीक है, जहाँ पे चोट लगी है। एंड पुट ए बैंडेड ओवर द कट एरिया इफ देयर इज अ वेरी स्मॉल कट इन द स्किन। अगर बहुत हल्का सा स्किन में कट लगा है तो आप जब एंटीसेप्टिक लोशन लगाओगे ना तो अपने आप ब्लड क्लॉट हो जाता है, रुकने लग जाता है, ठीक है। इफ द ब्लड स्टॉप देन ऑन दैट एरिया, अगर स्मॉल कट लगा है तो उसके बाद आप उस पर बैंडेज लगा सकते हो, ठीक है, आप उस पर बैंडेज लगा दो। सी नेक्स्ट है पुट ए बैंडेड ओवर द कट एरिया। जो कट एरिया उस पर आप क्या लगा दोगे, बैंडेज लगा दोगे। देखो इसमें दिखाया भी है, इसका देख लो बर्न वाला, सी दिस, आप ये पिक्चर देख लो, देखो हैंड इसका बच्चे हैंड बर्न हो गया है। तो फर्स्टली देखो इसने क्या किया, हो सकता है कि मे बी टाइम कैसा रहा होगा, हो सकता है विंटर हो, विंटर में लोग फ्रिज में आइस नहीं लगाते, वाटर कोल्ड चिल्ड करने के लिए नहीं रखते, तो ये मेथड भी है। आपने अपने घर का टैप ऑन किया, क्योंकि विंटर में जब मौसम ठंडा होता है तो जो आपकी टैंकर्स में जो वाटर होता है, जो स्टोर होता है, वो भी बहुत ठंडा हो जाता है। तो आपने सबसे पहले उस वाटर को अप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन होती है जब हमारी स्किन जलती है, तो जब कूल वाटर इस पर गिरता है तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक। अब देखो कट एंड बाउंस वाले में, देखो डायग्राम नंबर 2 दिखाया है ना बेटा, कट लगी है, अगर स्मॉल कट है तो आप लोग क्या बैंडेज भी लगा सकते हो। अगर ज़्यादा कट लग गया है तो कॉटन है, कोई एंटीसेप्टिक लोशन से पहले उसे प्योर क्या कर लिया, उसको अप्लाई कर दिया, उसको क्लीन कर दिया उससे, ठीक है। फिर बहुत सी आपके देखो जहाँ छोटे बच्चे घर में होते हैं, बहुत सी चोट लगने पे जो मेडिसिन्स और पेस्ट लगाए जाते हैं वो होते हैं लोगों के घरों में, आप उसको अप्लाई करोगे, ऊपर से कॉटन लगा के उसके बाद कॉटन रोल से उसको कर देंगे, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है। आप उसको अप्लाई करने के बाद ये इस तरह से कॉटन से रोल कर दिया, ठीक है, कॉटन रोल है, पट्टी जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, पट्टी लगा दी, ठीक है। और इसका क्या फ़ायदा होगा, जो आपको चोट लगी है उस पर डस्ट पार्टिकल्स नहीं बैठेंगे, ठीक है, उस पर डस्ट पार्टिकल नहीं बैठेंगे, हाउस फ्लाइज है वो उसके टच में नहीं आएगी, जम्स नहीं उस पर अटैक कर पाएंगे क्योंकि वो कवर्ड होगा उससे। तो ये भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब स्किन हट जाती है तो दैट एरिया इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ होगी, ठीक है। तो दैट इज द रीज़न हमने ये लगाया। पुट ए बैंडेज ओवर द कट एरिया, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया, कट एरिया पे आप बैंडेज लगा सकते हो। नेक्स्ट है इफ द कट एरिया इज डीप एंड ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, रैप ए टॉर्निक्वेट एंड टेक द पेशेंट इमिडिएटली टू द डॉक्टर। अगर कट एरिया बहुत डीप है, देखो बेटा जब हमें माइनर कट लगता है तो जब आप एंटीसेप्टिक डिटॉल ये सब लगाते हो ना तो ब्लड स्टॉप्स, ब्लड आना स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर डीप कट है, ब्लड स्टॉप नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोला है, टॉर्निकेट मीन्स होता है इट इज ए कॉटन बैंड विच इज टाइड अबव द वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है उस जगह पे देखो जैसे इस पिक्चर में दिखाया, हो सकता है इसको डीप कट लगाओ, ठीक है, एंटीसेप्टिक लोशन वोशन लगाया, उसके बाद भी हो सकता है यहाँ इसका ब्लड नहीं रुक रहा होगा। तो अब क्या किया, उसके बाद इसको टाइट किससे कर दिया, इट इज़ ए कॉटन बैंड, ये कॉटन बैंड होता है विच इज़ टाइड अबव द वाउंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ठीक है, जिस पोर्शन से ब्लड आ रहा है उसके ऊपर इसे टाइट कर दिया और फिर इमिडिएटली उसको कहाँ ले गए, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल ओपन छोड़ दोगे, जब आप उसको टाइट कर दोगे कुछ तो ब्लड स्टॉप होगा। अगर बहुत ज़्यादा कट लगा, अगर आप उससे कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कंटिन्यूस ब्लड निकलेगा, कंटिन्यूस ब्लड निकलता रहेगा,
इसलिए उस जगह को कॉटन बैंड से थोड़ा टाइट कर देना चाहिए एंड देन यू टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। अब नेक्स्ट है हीट स्ट्रोक। देखो बेटा हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक मोस्टली समर डेज में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक की, हीट स्ट्रोक, ठीक है। ये बेटा दिस इज अ कंडीशन अराइजेस एट द टाइम ऑफ ए समर सीजन। समर सीजन में जो हॉट एरियाज होते हैं वहाँ वेदर बहुत हॉट होता है एंड ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम आप डे टाइम ले सकते हो, डे में भी चलने लगता है। डे टाइम क्या होता है? बहुत गर्म हवा चलती है, बिल्कुल हॉट एयर होती है। जैसे अदर सीजन्स में आप लोग देखोगे जब हवा तेज चलती है तो हमें कूल लगती है, लेकिन हॉट समर सीजन में द एयर विच विंड जो ब्लो कर रही है वो बहुत ही हॉट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लू भी बोलते हैं, ठीक है। जो हॉट एयर ब्लो करती है, मूव करती है इन द मंथ ऑफ समर सीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, ठीक है। और ये हॉट एरियाज में, नॉर्दर्न प्लेन्स एरियाज में देखो, जैसे देखो वाराणसी है, ये भी हॉट एरियाज में आता है, यहाँ का वेदर भी हॉट है। तो गर्मियों में आप लोग हर साल यहीं पढ़ते हो, वाराणसी में रह रहे हो, तो ये बात आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रही हो कि गर्मियों में बहुत गर्म हवा चलती है जिसे हम लोग लू बोलते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा हॉट होता है कि हमारी स्किन भी जैसे लगता है कि बिल्कुल जैसे लगता है ना कि स्किन जल जाएगी। अगर आप थोड़ी देर सनलाइट में खड़े हो जाओ तो चेहरा, स्किन, जो हमारी स्किन है, लगता है कि ये बर्न हो जाएगी। और ये एक बहुत लोगों को इसकी वजह से स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सनलाइट में नहीं ज़्यादा जा पाते हैं, ठीक है। सो ये हीट स्ट्रोक स्पेशली समर सीजन में होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट ह्यूमिड वेदर व्हेन वी रिमेन आउटडोर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। जब हॉट समर सीजन होते हैं और लॉन्ग टाइम से हम लोग कहाँ बाहर हैं, तो वी स्टार्ट फीलिंग टायर्ड, गेट ए हेडेक और स्टार्ट टू वोमिट विच इज समटाइम अकम्पेन्ड बाई हाई फीवर, ठीक है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो देखो स्पेशली समर सीजन में हम लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते हैं। 6-7 बजे बेटा आप लोग ने ध्यान दिया होगा, जब अंधेरा होता है तब हम अपने घरों से निकलते हैं, क्योंकि जो दोपहर का समय है, जो आफ्टरनून टाइम है, इस समय इतनी ज़्यादा हॉट एयर ब्लो करती है जिसको हम लोग लू बोलते हैं। अगर ऐसे टाइम में हम लोग घर से ज़्यादा देर बाहर हैं तो इससे भी हम बीमार हो जाते हैं, इससे भी हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं, ठीक है। बहुत हेड हमारा दर्द करने लगेगा, हमें थकान लगेगी, ठीक है। और हमें वोमिटिंग भी आने लगती है, वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, ठीक है। तो ये सब सिम्टम्स हैं, और फीवर भी आ जाता है, ये सब सिम्टम्स हैं। अगर आपको लू लग गई है, ठीक है, आपको बहुत कमजोरी फील हो रही है, आप टायर्ड फील कर रहे हो, आप फिट और हेल्दी फील नहीं कर रहे हो, आपको टायर्ड, थकान लग रही है, आपके हेड में पेन हो रही है, आपको वोमिटिंग भी हो रही है, ठीक है, और इवन आपको फीवर भी आ गया है, तो अगर ये हॉट सीजन में अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट स्ट्रोक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट स्ट्रोक। एंड दिस इज ड्यू टू द हॉट वेदर। और ये किसकी वजह से होता है बेटा? ये हॉट वेदर की वजह से होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं। और ये स्पेशली किन दिनों में होता है? समर डेज में। ये स्पेशली कब होता है बेटा? ये स्पेशली समर डेज में होता है। और इसी को जो सिम्टम्स मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किए हैं, अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हीट स्ट्रोक, ठीक। नाउ व्हाट यू कैन डू फॉर द पेशेंट, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो पेशेंट को सबसे पहले क्या करो? आप शेड में ले जाओ। आप लोग ने खुद देखा होगा अप्रैल के मंथ में असेंबली में बहुत बच्चों को चक्कर आता है, ध्यान दिया है? वेदर बहुत हॉट होता है, कितने बच्चे असेंबली में गिर जाते हैं चक्कर खा के, होता है ना बेटा ऐसा? क्योंकि जब हॉट वेदर होता है तो ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो आप अगर कोई होता है तो आप पेशेंट को कैसे हेल्प कर सकते हो? फर्स्टली हम लोग भी देखो असेंबली में जिस भी बच्चे को चक्कर आ जाता है या कुछ होता है तो सबसे पहले हम लोग उसको लाइब्रेरी, अपने स्कूल की लाइब्रेरी में पंखे लगे हैं, एसी भी चलता है, वहाँ ले जाके उसको थोड़ी देर के लिए बैठने को बोलते हैं लंबी लंबी सांसें लो,
ठीक है, लॉन्ग ब्रीथ लो और कॉलर बटन ओपन कर देते हैं, हैंड्स के बटन ओपन करते हैं, फिर बच्चा अपने को नॉर्मल फील करने लगता है। तो हीट के कारण ज़्यादा गर्मी से ऐसा हो जाता है। सो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप पेशेंट को कहाँ ले जाओ, शेड में ले जाओ। ठीक है। सेकंड, गिव हिम साल्ट, शुगर एंड लाइम सॉल्यूशन। ठीक है, साल्ट, शुगर और नींबू पानी भी आप दे सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन हेल्प द पेशेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।